हाय पंकज क्वात्रा, वेलकम्स यू अगेन। आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड की आज वाली डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन है और टोटल 400 वर्ड्स की डिक्टेशन है। और जो स्टूडेंट्स मैगजीन पर आगे हैं, अपनी स्पीड गेन करना चाहते हैं, उनके ये डिक्टेशन बहुत काम आएगी। और डिक्टेशन के एंड में मैं आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के तरीके बताऊंगा, किस तरह से हम डिक्टेशन से ही अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। और डिक्टेशन के बाद क्या करना है वो वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ। यस, बी रेडी, स्टार्ट। I am grateful for the opportunity that has been afforded to me to meet you this afternoon. During the last 4 or 5 days, I have been visiting places which have afforded solace to millions and millions of people for ages past, and which are going to afford solace of a similar kind to generations yet to be born. While visiting these places, I have also seen the great architecture which is a specialty of these parts, the like of which you do not see in that part of the country from which I come. I have been reminded time and again of the greatness of those who conceived the idea of erecting these temples, of those who actually worked on them and ultimately succeeded in creating these works of perfect art. And I must confess that I feel somewhat jealous because I cannot find that kind of thing in the north to compare with these great things in the south. I do not regard them or regard you as different from me or from that part of the country from which I come. Therefore, I feel that our ancestors, our seers and sages, in their great wisdom, have bound us all together by silken ties, which time, vicissitudes, foreign invasions, and political upheavals have not been able to cut asunder. And today, India, right from Kanyakumari to Kailash, is one, and God willing shall ever continue to remain one. We have had differences of language, of custom, of ways of living prevalent in this country for centuries. But underlying all these differences, there has been an undercurrent of unity, nay, of full unity, which has kept India together in spite of political differences in this vast land. Para change. It has been rightly pointed out by you, Mr. Vice Chancellor, that there is a genius of reconciling different ideas which is inherent in our land, and it is that genius which has preserved this ancient land, its glory, its civilization, and its culture, which are even today, I make bold to say, not inferior to that of any other part of the world. Until, say, 2 centuries ago, our people in this country were in no way inferior to any other part of the world in any matter, be that in the sphere of arts or sciences. During the past 2 centuries or so, fallen
फार बिहाइंड अदर्स नाउ। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने आज वाली डिक्टेशन पूरी लिखी होगी। अब डिक्टेशन लिखने के बाद क्या करना होता है, हमने इसको ट्रांसक्राइब करना है, यानी इसकी इंग्लिश लिखनी है। अगर आप हाथ से लिख सकते हैं तो हाथ से लिख लें, टाइप कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको टाइप करना होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर या टाइपराइटर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं और ट्रांसक्राइब जरूर करना है। और इसके बाद आपने एक बार इसको चेक करना है, यानी वीडियो दोबारा देखकर उन वर्ड्स को चेक करेंगे जो वर्ड्स छूट गए हैं, गलत बने हैं या कितनी मिस्टेक्स हैं, ये वो सारा एक बार चेक हो जाएगा। और चेक करने के बाद कुछ वर्ड्स हर डिक्टेशन में ऐसे आते हैं जिनके मीनिंग हमें नहीं पता होते, तो हमने उनके मीनिंग फाइंड करनी है। मीनिंग फाइंड करने से होगा क्या, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। वोकैबुलरी इंप्रूव होगी तो नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो हमें ट्रांसक्राइब करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो वर्ड हमारे फेमिलियर हो जाएंगे, उनके मीनिंग पता होंगे, हम सेंस लगाकर भी ट्रांसक्राइब कर सकेंगे। तो आज वाली डिक्टेशन में जो कुछ वर्ड्स आए हैं, जो मैंने एन सर्कल किए हैं, जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहला है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मीनिंग होता है कृतज्ञ या आभारी जिसे कहते हैं। दूसरा है सॉलेस, वर्ड आया है एक, इसको बोलते हैं धीरज या सांत्वना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसीव्ड। कंसीव्ड होता है कल्पना करना या विचार करना। तो इस तरह अगर हम मीनिंग देखेंगे, हर डिक्टेशन में कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो हमारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती रहेगी और आगे धीरे धीरे मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है एरेक्टिंग। एरेक्टिंग होता है सीधा करना या खड़ा करना। नेक्स्ट समवॉट, कुछ हद तक, थोड़ा जिसे कहते हैं। विजडम, विजडम अक्सर डिक्टेशन में आ जाता है। विजडम का मीनिंग होता है इंटेलिजेंस या बुद्धिमता। नेक्स्ट सीयर्स। सीयर्स मीन्स सिद्ध पुरुष, संत, दृष्टा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आज की डिक्टेशन में आया है सेजेस, संत या ऋषि जिसे कहा जाता है, ज्ञानी। एक और वर्ड देखते हैं अपहेविल, उथल पुथल या क्रांति जिसे कहा जाता है। एक और वर्ड आया था असेंडर। असेंडर का मतलब होता है पृथक या अलग अलग। नेक्स्ट है इनहेरेंट, पैतृक या जन्मजात कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स प्रतिष्ठा, यश, शोभा। एक और वर्ड है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है क्षेत्र या स्थिति, आकाश भी कहा जा सकता है। विसिसिट्यूड, अन्याय, हेर फेर जिसे कहा जाता है। एक और वर्ड देखते हैं नेक्स्ट एंसेस्टर। एंसेस्टर्स होता है पूर्वज। कन्फेस, कन्फेस का मीनिंग होता है स्वीकारना। और नेक्स्ट है रिकनसाइल, मेल मिलाप या समाधान कहते हैं जिसे। और इन स्पाइट ऑफ, ये बार बार यूज आता है, तथापि। और नेक्स्ट वर्ड है डेक्री। डेक्री होता है निर्णय या आज्ञा जिसे कहते हैं। एग्जम्पशन, छूट। नॉट विथस्टैंडिंग, बावजूद या तथापि। एक वर्ड था कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है समेकित। और सूट, SUIT, सूट, मुकदमा। तो ये सारे वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, अक्सर डिक्टेशन में आते रहते हैं और इसी तरह हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहेगी। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स की, इन पहले वर्ड को सिलेक्ट करना है जो हमें नहीं पता या कुछ एडवांस आउटलाइन आती है, उन वर्ड्स की एक नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक में ये सारे वर्ड्स नोट करते रहना है, तो आपका एक कलेक्शन हो जाएगा, अपना स्वयं का कलेक्शन हो जाएगा और आप उसको कभी भी पीछे वाले वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग देख सकते हैं जो अक्सर मैगजीन में आते हैं, उनकी आउटलाइन देख सकते हैं। तो आपकी एक डायरी बन जाएगी, तो उस डायरी में ये सारे वर्ड्स नोट करने हैं। तो उम्मीद करता हूं तो आपने ये वीडियो सारा देखा होगा और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट देंगे, अपने सुझाव देंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उसको बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।